नमस्कार और आप देख रहे हैं द्वारका सिटी न्यूज। आज हम बात करेंगे द्वारका एक्सप्रेसवे की, जिसके खुलने से द्वारका के सेक्टर 22 और 23 के निवासियों को अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। द्वारका में विकास तो हुआ, लेकिन इसका नकारात्मक परिणाम द्वारका के निवासियों पर ही हो रहा है, जबकि वहीं गुरुग्राम के लोग इसका भरपूर लाभ उठा रहे हैं। 18,455 पेड़ों के कटने से द्वारका के सेक्टर 22 और 23 की हरियाली और शांति जैसे छिन्न भिन्न हो गई हो, मानो जैसे प्राकृतिक संतुलन और जैविक विविधता पर बुरा असर पड़ा हो। फ्लाईओवर्स और चौड़ी सड़कों के बावजूद ट्रैफिक की समस्या कम नहीं हुई है। खासकर स्कूलों के आसपास ट्रैफिक का प्रबंधन करना बहुत जरूरी हो गया है। द्वारका के निवासियों के स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा को लेकर द्वारका सिटी पहुंची सेक्टर 22 और 23 की सोसाइटीज में, ताकि लोगों की समस्या से रूबरू हो सके। Hello, we are from the management committee of New Kanchenjunga Apartments of Sector 23 in Dwarka. Myself, Arun Kumar, and Mr. C.L. Paul, he is our president, and the general secretary of this. सर, जैसे कि द्वारका एक्सप्रेसवे आपके यहाँ अपार्टमेंट के सामने है, तो इट्स अ बूम और अ बैन फॉर योर? First of all, it's not at all a tricky question, very easy answer. It is a boom what we are experiencing now, because broad and speech we envisaged as the citizens of the locality at the planning stage of this flyover, which was not seen or foreseen by the authorities. That is a pathetic situation here. See, now we can see, we are witnessing that. So this is good 400 meters from the front gate of our society to the next floodlight. Heavy traffic jam used to be there during the peak hours, especially during the school break hours. So on the service lane also, it is heavily loaded with the traffic, because the tricky drivers, they take a bypass route to avoid the main road traffic. So that creates a havoc in the service lane also. Even pedestrians are suffering here. My General Secretary Arun Kumar has told you about this project. As a matter of fact, at the very initial stages of this project, all residents at Dwarka Federation of Dwarka, the CGHS, they had protested against this project of flyover, basically on the grounds that it will bring traffic from Rajasthan and Haryana side into Dwarka, and that will create havoc. And secondly, it will create a lot of pollution. Thirdly, there are 3 schools just at the end, just hardly 400 yards away from the where flyover falls. Now what we are facing is what we had agitated against, but we were not listened to that at that time, and now we are facing this problem. Solution to this problem does lie with the administration, how to tackle it. So far, any particular solution is not in our mind, because government has spent thousands of crores of rupees on this project. Now at this stage, we cannot say that this project can be scrapped or the flyover can be removed. No, this flyover cannot be removed. Now, given this situation, this is for the administration to consider how to tackle this problem of traffic jam, which has started immediately after inauguration of flyover. मैं श्रीवास्तव बोल रहा हूँ, ये महादेव अपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो पुल की वजह से हमारे को बड़ी तकलीफ है, क्योंकि ये रेड लाइट से जब हम आते हैं इधर सर्विस लाइन पे, तो वहाँ पर इतना रश हो जाता है, इतनी भीड़ हो जाती है, क्योंकि इधर से जो ट्रैफिक जाता है पुल के ऊपर से, वो सर्विस रोड पे चला जाता है, क्योंकि उधर रेड लाइट होती है, उसकी वजह से उससे बचने के लिए वो उधर चला जाता है और सारा रास्ता ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बड़ी दिक्कत आती है। बच्चों को स्कूल छोड़ने आना पड़ता है या कुछ करना पड़ता है, हमें दिक्कत है, तो इस पुल की वजह से हमें दिक्कत आ रही है। Bindu Sethi from Dream Apartment, Sector 22, Dwarka. So we are facing a very peculiar problem these days. Because of this new flyover which connects to Dwarka Expressway, we are facing a lot of everyday problem. The flyover starts right in front of our society, and the slip road which is being made
which is still under construction, that we don't know when it's going to finish. For the timing, all the traffic comes from the service lane, which is right in front of our flats. And that is causing so much problem. We cannot move freely, we cannot move out of the society freely, we have to wait for such a long time. It's become a major hazard for the kids, for the people who have to walk there, anybody who needs to go to the shops. So it's becoming very, very difficult. It is something which has been imposed on us by, I don't know, the government, NHAI, whatever we should say. If they want to build the roads, they should at least think of the residents who've already been living here for 20, 25 years. And nobody has considered our problems. Nobody has come and asked us what kind of problems you will face. Hi, I'm Shikha. I'm from Dream Apartment, and in continuation what Bindu just said, I want to say something which you people can, do some work on it. Lot of trees has been chopped off from this area, which is really bad. I mean, now look at the pollution level that we are living in. Already Delhi have crossed pollution level is very, very bad in Delhi. And इतना सारा ट्री यहाँ से चॉप ऑफ कर दिया, कोई प्लांटेशन भी नहीं हुआ. फर्स्ट थिंग आई वांट टू से, प्लीज फ्लाईओवर के ऊपर ट्रीज मत लगाना, वो सोल्यूशन नहीं होता है. सेकेंडली, प्लांट सम गुड ट्रीज अराउंड सर्विस लेन्स में या कहीं पे, सो दैट हमारा ग्रीनरी वापस आए, हमें थोड़ा ब्रीदिंग इजी हो. पोल्यूशन की वजह से, ट्रैफिक की वजह से, everything is so bad over here. I mean, you must just requesting every one of you to come here and see कि हम डेली लाइफ में, डेली बेसिस पे हम किस किस प्रॉब्लम से यहाँ से गुजर रहे हैं. थैंक यू. From Dream Apartment. So we are facing lots of problem because of this construction. So we don't know the time limit it will take to finish off the project. So noise pollution is on a peak. So some measures should be taken to do something about the noise pollution. And और भी बहुत सारी problems हम face कर रहे, like रात भर construction होती है, उसके वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है. वी कांट स्लीप प्रॉपरली बिकॉज ऑफ द pollution and all that. Thank you. Hi, I'm Shalu Sherawat from Dream Apartment, and my major concern is about the garbage on the roads near the service lanes, because every day I can't see anyone picking up the garbage there on the roads. It's like lying down on the road and no one's there to pick that up. And the pollution is there. Thirdly is the traffic. The car comes and just throw the garbage outside, and it's on the road only. And this is the problem we are facing about the garbage and the dust. All the bees and everything is there. So you are facing the problem because of the expressway only, or? Yeah, because the construction is going on. Cleaning is not proper, and the cars are coming from the service lane only because it is under construction. So people are going from here only. So the chaos is on this road only. Okay, That's why. thank you. हेलो, माय नेम इज मिसेस पूनम शर्मा. जैसा कि अभी मेरी फ्रेंड्स ने बताया, बिंदु जी, शिखा जी, सीमा जी और शालू ने, कि एक्सप्रेस वे बनने के बाद यहाँ पे हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं. जैसे कि यहाँ पे इतना ट्रैफिक बढ़ गया है, उसकी वजह से नॉइज पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, प्लांट सारे कट ऑफ हो गए हैं, इतना कूड़ा है, कूड़ा की वजह से इतने मच्छर यहाँ पे हैं. हम लोग सोसाइटी से जब निकलते हैं किसी काम के लिए तो इतना ट्रैफिक है कि हमको 7 to 10 मिनट्स 12 मिनट्स हमको वेट करना पड़ता है बाहर जाने के लिए, जो कि यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि बाहर कोई ट्रैफिक पुलिस वाला हो. सिंगल लाइन है, उसमें ट्रैफिक इतना है. स्कूल की बसें निकलती हैं, उस समय बच्चों को ड्रॉप करती हैं सोसाइटी के गेट पे, पेरेंट्स पिक कर रहे होते हैं, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर तक जाम लग जाता है. तो कोई भी सिस्टम नहीं है कि इसको चलाने के लिए कि ट्रैफिक पुलिस वाला मैनेज किया है यहाँ पे कोई. और पोल्यूशन इतना हो रहा है, उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है. नॉइज पोल्यूशन के लिए, एयर पोल्यूशन के लिए
कोई भी सिस्टम जस्ट चल रहा है, एक भेड़ चाल। एक्सप्रेस पे हाईवे बना है, बहुत अच्छी बात है। दिल्ली की प्रगति हो रही है, हाईवेज बन रहा है, इतना अच्छा हो रहा है, लेकिन थोड़ी सी जो रेजिडेंट्स आपस में साइड में रह रहे हैं उनको भी थोड़ा मद्देनजर रखते हुए इसको करें, उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता तो ज्यादा अच्छा होता। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे इस टाइम? मैसेज यही है कि आप जब भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वहाँ जो लोकल एरिया है उनसे पहले मिले, उनको क्या नुकसान उससे हो रहा है, उनको क्या फायदा उससे हो रहा है, इसके बारे में उनसे डिस्कशन करके मुझे लगता है कंस्ट्रक्शन करी जाए तो ज्यादा अच्छा है कि लोकल लोग भी हैप्पी रहेंगे और कंस्ट्रक्शन में हो सकता है वो भी कुछ अपना योगदान दे सके। थैंक यू। आपका नाम? महेश लाल, अपार्टमेंट? सुबह अपार्टमेंट। अच्छा, तो आप यहाँ पे कितने साल से इसमें 2 महीने हो गए यहाँ पे काम करते? हाँ, काम करते हुए 2 महीने। और ये एक्सप्रेसवे को कितने साल हो गए यहाँ पे? एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है? ये एक्सप्रेसवे जो बना ये 2-2.5 साल हो गए बनने में। 2-2.5 साल। तो एज अ गार्ड आपको क्या दिक्कत आती है यहाँ पे एक्सप्रेसवे के लिए? ट्रैफिक होता है यहाँ पे? ट्रैफिक जाम होता है बहुत काफी यहाँ पे, कि अंदर बाहर गाड़ियाँ आते हैं, हमें बहुत ज्यादा परेशानी होती है, 2 बात सुननी भी पड़ती है यहाँ पे। अच्छा। हाँ, ये मैं शुभम अपार्टमेंट सेक्टर 22 से बोल रहा हूँ। यहाँ पे नया फ्लाईओवर बना है एक्सप्रेसवे का ही है, और इस फ्लाईओवर बनने से एक तो जाम की समस्या तो बहुत ज़्यादा हो गई है। जब से फ्लाईओवर बन रहा है तब से ही बार बार यहाँ रेगुलरली जाम लग रहा है। पीक आवर में तो ये होता है कि स्कूल की छुट्टियाँ भी हो रही हैं बच्चों की। दूसरा, रोड क्रॉस करने में बहुत प्रॉब्लम है और आए दिन रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। हम बाहर निकल के आते हैं, रोज साउंड आता है एक्सीडेंट हो गया धड़म, तो बहुत दिक्कत है। दूसरा, और कोई भी नया मतलब कोई भी हमारे बायर सेलर कोई भी नहीं आ पा रहा है। किसी को फ्लैट बेचना है वो नहीं आ पा रहा है, किसी को खरीदना है वो नहीं आ पा रहा है, मतलब कोई लाइक ही नहीं कर रहा है। इस समय जाम और नॉइज पोल्यूशन इतना है, रात को सो नहीं पाते हैं, बार बार हॉर्न बज रहे हैं, बार बार जाम हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो इससे जो है एक माहौल भी सोसाइटी का खराब हो रहा है। बच्चों के सामने यहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं, गाड़ी टच हो जाती है, एक दूसरे को लड़ रहे होते हैं लोग, तो बड़ा प्रॉब्लम का हो गया है। रोड पार करना भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि स्कूल के टाइम में कुछ बसेस लेफ्ट आती हैं, कुछ राइट आती हैं, तो लेफ्ट और राइट जाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है अभी, तो बहुत प्रॉब्लम है, बस छूट जाती है बच्चों की। और तो इसका क्या सोल्यूशन देना चाहते हैं आप? इनका यही सोल्यूशन देना चाहते हैं कि इसको जल्दी जल्दी जो अधूरा काम है, इनॉग्रेशन से पहले तो फास्टेस्ट काम था, बट अब वो बिल्कुल ही डम्ब हुआ है। तो अगर जो भी काम है इसे कंप्लीट करे और फुट ओवर ब्रिज बनाए या अल्टरनेटिव कोई पुलिस का इस तरह से बूथ लगाएं ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो एटलीस्ट। और ये जाम वाली जो समस्या है इसके लिए प्रॉपर वो ध्यान दें। सुशील बोरा है और मैं शुभम अपार्टमेंट्स में ही रहता हूँ। प्रॉब्लम यहाँ पे सबसे बड़ी ये है फ्लाईओवर की जो स्पीड है, जो व्हीकल्स की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है, ज़बरदस्त है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स का होने का चांसेस तो हमेशा ही होते हैं और 2-3 दफ़ा एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि कुछ बसें बिल्कुल सामने 23 सेक्टर की या अक्रॉस दी रोड आती हैं, स्कूल की बसें, जो कि मदर्स अपने बच्चों को लेके वहाँ पे बोर्डिंग कराना चाहती हैं, लेकिन सड़क पार करना एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। ये मुश्किल काम इतना ज़्यादा कर दिया इन लोगों ने। और तीसरा ये सबसे बड़ा कारण ये है, जो ये नाला है, ये नाले को बनते हुए 1.5 महीना हो गया, अभी तक ये नाला कंप्लीट नहीं हुआ। इसकी वजह से यहाँ पे जो ट्रैफिक है वो हमेशा जाम में फंसा रहता है, और जाम में तो फंसा रहता है, लेकिन जो सारा दिन पों जो लगी रहती है ना, ये बहुत ज़्यादा। तो इसका आप क्या सोल्यूशन देना चाहते हैं? ये पहले तो नाला जल्दी से बनाए, दूसरा इस जो उतरते हुए फ्लाईओवर की जो स्पीड है जो व्हीकल्स की, उसके ऊपर कुछ अंकुश लगाया जाए। सिटी में और ऐसे कवरेज के लिए हमें संपर्क करें और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पेज को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें ताकि लोगों तक जागरूकता बनी रहे।